Hello, my dear students. I Rahul Mishra, and today we will start a new topic, soap and detergent. So you have studied it in class 10th also. So soap and detergent is the today's topic, and first we will discuss soap. So what are soap? Soap are the sodium or potassium salts of higher fatty acid. तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट किसके? हायर फैटी एसिड के. इट मीन्स वी कैन से हायर फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ही क्या कहलाते हैं? सोप कहलाते हैं. बट लिसन, बिफोर स्टडिंग सोप वी हैव सम आइडिया अबाउट हायर फैटी एसिड. सो व्हाट आर हायर फैटी एसिड्स? We all know that, listen, we all know that the formula of acetic acid, this is CH3COOH. This is the formula of acetic acid. We all know that any organic acid must have COOH group, must have COOH group. So, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होगा तो उसमें COOH ग्रुप जरूर होगा. बट लिसन, चेंज इज ऑब्जर्व वेयर? सो चेंज इज ऑब्जर्व इन द हाइड्रोकार्बन चेन. तो चेंज कहाँ ऑब्जर्व होता है हमें ऑर्गेनिक एसिड में? हाइड्रोकार्बन की चेन में. इट मीन्स दिस पिंक बॉक्स contain hydrocarbon chain, and listen, there is change observed. So listen, when this hydrocarbon chain is very long, when this hydrocarbon chain is very long, जब ये हाइड्रोकार्बन की चेन बहुत बड़ी हो जाती है, here it is of 17 carbon, here it is of 17 carbon and 35 hydrogens. So listen, this overall acid is called as higher fatty acid. तब ये जो एसिड है हमारा, तब ये बोला जाएगा higher fatty acid. So listen, can we say CH3COOH is higher fatty acid? क्या हम CH3COOH को हायर फैटी एसिड कह सकते हैं? नो. वाई? बिकॉज देयर इज नो हायर हाइड्रोकार्बन. क्योंकि यहाँ पर हायर हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल कितने कार्बन की चेन है? 1 कार्बन. इट मीन्स ये हायर फैटी एसिड नहीं है. सो द एग्जाम्पल ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर स्टेरिक एसिड, पामेटिक एसिड, ओलेइक एसिड, levulinic acid. All these are the examples of higher fatty acid. So higher fatty acid must contain higher hydrocarbon chain or long hydrocarbon chain. It means higher fatty acid में सबसे मेन चीज़ क्या है? जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो बहुत ही लंबी होती है. जैसे यहाँ 17 कार्बन की चेन बहुत लंबी, मीन्स 17 कार्बन की चेन है, जिसको कुछ इस तरह जिग जैग मैनर में दिखाया जाता है. सो लिसन, दिस इज हायर हाइड्रोकार्बन चेन. इट इज ऑफ 17 कार्बन. दीज कॉर्नर रिप्रेजेंट्स कार्बन. दीज कॉर्नर रिप्रेजेंट्स कार्बन. नाउ लिसन, सो व्हाट आर सोप? So soap are the sodium and potassium salts of higher fatty acid. It means soap क्या होते हैं? हायर फैटी एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट. जैसे हम लोग एसिटिक एसिड का सॉल्ट कहें सोडियम सॉल्ट, तो सोडियम एसीटेट
वैसे हायर फैटी एसिड हम जानते हैं स्टेरिक एसिड होता है, तो इसका सोडियम सॉल्ट हो जाएगा सोडियम स्टीयरेट. सो इट्स फार्मूला इज C17H35COONA. This is sodium stearate. So listen, we can take potassium instead of sodium also. It means हम potassium salt भी ले सकते हैं stearate. It means second example we can say potassium stearate, and formula of potassium stearate will be C17H35COOK. Now we will discuss saponification reaction. So what is saponification reaction? तो जो सोप को बनाने वाली अभिक्रिया होती है, the reaction for the formation of soap is called as saponification reaction. So in this reaction we all know that when fat or oil, जब कोई फैट या ऑयल, so here tristyrene is taken when fat or oil is alkaline hydrolyzed. It means जब फैट या ऑयल की alkaline hydrolysis की जाती है, so there will be 3 KOH. Then listen, there will be formation of salt of higher fatty acid. तो यहाँ पर सिंपली यहाँ से जो OCO-C17H35 पार्ट है, ये हमारे पास 3 हैं और ये तीनों ही रिप्लेस हो जाते हैं और ये OH से रिप्लेस होते हैं. किससे रिप्लेस होते हैं? OH से, बिकॉज देयर आर 3K and 3 OH. So these 3 OCO-C17H35 group get replaced with these 3 OCO-C17H35 group get replaced with OH, 3 OH, replaced with 3 OH. It means what is the product? Product will be CH2, OH, CHOH and CH2OH. What is this? This is glycerol. But listen, we have how many OCO-C17H35? We have 3 C17H35 COO group. C17H35 COO group, हमारे पास 3 ये ग्रुप बचे हुए हैं. एंड वी हैव 3 पोटेशियम आल्सो, हमारे पास 3 पोटेशियम भी हैं. हेयर 3 KOH is taken. You will mention it in your copy. Now these 3 potassium reacts with these 3 C17H35 COO group and it will form potassium stearate. So these 3 C17H35 COO group reacts with 3 potassium which are remaining in the reaction and they will form what? Potassium stearate. And what is this? This is soap. This is what? This is soap. So write down here, it is what? It is soap. So this compound is the salt of higher fatty acid and it is called as soap. Now we will discuss types of soap. So soap is of generally 2 types. So first we will discuss soft soap. So soft soap are those soap which produce good lether with water. It means soft soap ऐसे सोप होते हैं जो पानी के साथ ज़्यादा झाग देते हैं. And they do not contain excess of alkali. और इनमें एल्कली जैसे KOH, NaOH
इनकी परसेंटेज क्या होती है, बहुत कम होती है। सो दे आर यूज्ड एज शैम्पू, इसलिए ये शैम्पू की तरह यूज किए जाते हैं। बट लिसन, व्हाट इज द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉफ्ट सोप? दे आर ऑब्टेन्ड बाय द एक्शन ऑफ KOH ऑन फैट्स और आयल्स। इट मीन्स जैसे कि अभी हमने सैपोनिफिकेशन रिएक्शन देखी थी, उसमें फैट या आयल रिएक्ट करता था KOH से, तो हमें दिमाग में हमारे आ जाना चाहिए द सोप ऑब्टेन्ड was what? That was potassium stearate, and that is a type of soft soap, जो कि किस टाइप का सोप है? वो पोटेशियम स्टीरेट सॉफ्ट सोप है। बट लिसन, व्हेन वी यूज NaOH इंस्टेड ऑफ KOH, अगर हम सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में KOH की जगह NaOH यूज करें, इट मीन्स यहाँ पर अगर हम 3 NaOH ले लें, इफ वी टेक instead of 3 KOH, if we take 3 NaOH, then reaction will be same. Here product will get change. Product will be 3C17S35 COO K नहीं आएगा, इस बार क्या आएगा? Na. It means product will be sodium stearate, and sodium stearate is what? Sodium stearate is hard soap. इट मीन्स अगर सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में हम NaOH यूज करते हैं KOH की जगह, तो हमारा प्रोडक्ट पोटेशियम स्टीरेट ना बनकर क्या बनता है? सोडियम स्टीरेट, एंड दैट इज कॉल्ड एज हार्ड सोप, एंड दे प्रोड्यूस लेस लीथर विद वाटर। और ये हार्ड सोप जो है पानी के साथ कम झाग देते हैं। दे कंटेन एक्सेस ऑफ एल्कली, इनमें एल्कली की मात्रा ज़्यादा होती है। So sodium stearate is the example of hard soap, and they are used for washing purpose for cloth. ये कपड़े को धुलने के लिए यूज किए जाते हैं। Now we will discuss the difference between washing and bathing soap. अब हम लोग कपड़े धुलने वाला सोप और नहाने वाले सोप में डिफरेंस पढ़ेंगे। So listen. So what are washing soap? They are made by cheap oil and fats. It means जो वॉशिंग सोप होते हैं, कपड़े धुलने वाले साबुन, इनको सस्ते फैट या ऑयल की अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से बनाया जाता है। While bathing soap are made by high quality of fat or oil. और जो हमारा बाथिंग सोप होता है, नहाने वाला साबुन, ये अच्छी क्वालिटी के फैट या ऑयल से बनाया जाता है। सेकेंड पॉइंट, दे में कंटेन हार्मफुल एल्कली। वॉशिंग हम लोग कहते हैं कि जैसे कपड़े वाले साबुन में कास्टिक ज़्यादा होती है। इट मीन्स व्हाट? दे कंटेन हार्मफुल एल्कली, उसमें हार्मफुल एल्कली होती है जो कि दाग को हटाने के लिए मदद करती है। बट लिसन, इन बाथिंग सोप दे डू नॉट कंटेन हार्मफुल एल्कली। In washing soap, ordinary color and perfumes are added in them. Washing soap में ordinary मतलब नॉर्मल परफ्यूम उसकी स्मेल के लिए और ऑर्डिनरी कलर डाला जाता है। बट इन केस ऑफ बाथिंग सोप, हाई क्वालिटी कलर एंड परफ्यूम्स आर एडेड इन देम। इट मीन्स बाथिंग सोप में हाई क्वालिटी के परफ्यूम और कलर को डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, एडिटिव लाइक सिलिकेट इज प्रेजेंट इन देम। इसमें सोडियम सिलिकेट के जैसे एडिटिव प्रेजेंट होते हैं कपड़े धुलने वाले साबुन में। बट लिसन, इन केस ऑफ बाथिंग सोप these type of additives are absent. लेकिन बाथिंग सोप में ये सारे एडिटिव एब्सेंट होते हैं।
Now we will discuss the difference between soap and detergent. So what are soap? Soap are the sodium or potassium salts of higher fatty acid. We all know that. But listen, detergents are the sodium salt of long chain benzene sulfonic acid. इट मीन्स जो डिटर्जेंट होते हैं वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जिनको साल्ट में BSA कहते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इनके सोडियम सॉल्ट को डिटर्जेंट कहते हैं. सो फॉर एग्जांपल एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, it is also an example of detergent. Now second thing, in case of soap, the ionic group in soap is COO minus Na plus. हमने देखा था सोप के केस में जो आयनिक ग्रुप होता है वो हमारा कौन सा होता है, ये जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है COO minus Na plus. दिस इज आयनिक आर पोलर ग्रुप. क्योंकि इस पर चार्ज होता है इसलिए इसे आयनिक ग्रुप कहते हैं. और जो नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट है इस पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए ये नॉन पोलर या नॉन आयनिक ग्रुप कहलाता है. लिसन, पोलर ग्रुप इज सॉल्युबल इन वाटर. जो पोलर ग्रुप होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है, जबकि जो हाइड्रोकार्बन चेन है जो कि हमारा नॉन पोलर ग्रुप है वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता. सो लिसन, सो सोप कंटेन आयनिक ग्रुप COO minus Na plus, while detergent contain ionic group SO3 minus Na plus. Now next point, soap are biodegradable. सोप बायोडिग्रेडेबल होते हैं, while some detergents are not biodegradable. लेकिन कुछ डिटर्जेंट बायोडिग्रेडेबल नहीं होते. नेक्स्ट पॉइंट, सोप हैव रिलेटिवली वीक क्लेंजिंग एक्शन. सोप का जो धुलने की क्रिया होती है वो थोड़ा वीक होती है, while डिटर्जेंट हैव स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग एक्शन. लेकिन डिटर्जेंट की जो क्लेंजिंग एक्शन है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. नेक्स्ट पॉइंट, सोप इज़ यूज्ड इन सॉफ्ट वाटर. सोप को सॉफ्ट वाटर के साथ यूज़ किया जाता है, वाइल डिटर्जेंट में बी यूज्ड विद सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर बोथ. लेकिन डिटर्जेंट को सॉफ्ट और हार्ड दोनों वाटर के साथ यूज कर सकते हैं. द केमिकल फार्मूला ऑफ सोप इज C17H35COONA, while the chemical formula of detergent is C18H37OSO3 minus Na plus. So this was the difference between soap and detergent, and in next lecture we will discuss cleansing action of soap.